Vulnerability is always my superpower. आपका ईमान होता है वो आपका सबसे बड़ा इनाम होता है. That's your biggest reward. Motherhood has really grounded me. There is an Italian quote that says "La bien niente," the beauty of doing nothing. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत talented हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो वायरल नहीं हुए हैं. क्योंकि मुझे याद आई वो 11-12 साल की प्रिया जो अपने एनुअल डे पे बड़े बड़े दिग्गज पोइट्स की पोएम माइक पे सुना रही होती थी. You know, when जब मैं कह रही हूँ जब इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम पे हम सब ओपन माइक्स करते थे. Nobody was doing this as a career. If you ever passed that old bookstore and picked up the book that just spoke to you, then this episode is for you. Or if you ever passed across a reel and that one line stayed with you, this episode is for you. Welcome to episode 3 of TMM. And I'm your host Rida Farid Bazmi, where I have conversation with people that are full of wisdom, intellect and are very heartfelt. You know, some voices echo, some just challenge you and some just linger around. And today we have one such voice with us. A poet who have written truth layer by layer. A woman who hold this immense strength, softness and so much of grace. And it's a privilege to have Miss Priya Malik today. Thank you. Hi Priya, it was such a good time with you today. Thank you for having me. Okay, so if I have to start off, your presence have a certain power. What do you tell people who wants to know Priya beyond the poet? Vulnerability is always my superpower. I think I've always been very honest and open with who I am. अगर आप मेरी कविताएं देखेंगी 2017 से लेकर 2026 तक उसमें आपको मेरा पूरा सफ़र दिखाई देगा. So I think that is what connects me to my audience. तो मैं अपने audience को वही बोलूँगी that thank you for being a part of this journey with me and for allowing me to be so open and honest. I've always said कि एक poet के लिए, एक writer के लिए, इनफैक्ट किसी भी creative इंसान के लिए आपका ईमान होता है वो आपका सबसे बड़ा इनाम होता है. That's your biggest reward, your conscience. So वही मन में रखती हूँ, जहन में वही चीज़ रहती है और आगे बढ़ती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ. आप लोग सुनते रहते हैं तो उसके लिए बहुत शुक्रिया. हम सुनते भी रहते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है, हम सेव भी करते हैं. थैंक यू. शेयर भी करिए. सब शेयर करते हैं. ठीक है, मतलब हमें याद है कि आपकी 2019 में आप जो 999 ढूंढ रही थी जी, वो सबको याद हो चुकी है बिकॉज दैट पोएट्री बर्स्ट आउट ऑन इंस्टाग्राम. यस, ठीक है. सो दैट इज समथिंग कि हमने ना छोटी छोटी अपनी जहां हम रिलेट कर सकते हैं दैट पार्ट वी हैव सेव्ड ऑन आवर इंस्टाग्राम. दैट इज सो स्वीट. थैंक यू. या बट now with Zorawar being in the picture, you have talked about your motherhood journey and you've been very open about it. Yeah. So was there an effect to it? Matlab, was your poetry more softened about it or you have gotten a little sharper with your poetry? Motherhood has really grounded me. I feel it has made me more patient. It has made me more empathetic. और एक बार जब आप एक पेरेंट बन जाते हो तो आपके साथ एक इनविजिबल धागा होता है जो आपको बाकी सारे पेरेंट्स से बांध लेता है. Because you understand what it means to be a parent and it's a very fulfilling feeling. It's unlike anything else. It's very demanding because once a parent, always a parent. There is no tapping out of it, right? But it also shows you so much of who you really are. I think motherhood really has taught me how to expand in life. I think the fact that women's body expands to give birth, I think that is a metaphor for life. Because your life also expands, your horizons expand. आपकी thinking, आपकी empathy, आपकी patience, आपका gratitude, हर चीज़ बढ़ जाती है. तो I think that is what the most beautiful part about motherhood has been to me. It has made my poems deeper. मैं जब अब लिखने बैठती हूँ बहुत थकी हुई होती हूँ बिकॉज बच्चा थका के रखता है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई यूटिलाइज माई टाइम मच बेटर. तो जो कविता शायद पहले लिखने में मुझे 4 घंटे लगते हों अब शायद मैं 1 घंटे में लिख लेती हूँ. बिकॉज यू नो आई रियली व्हेन आई गेट टाइम व्हाट एवर लिटिल टाइम आई गेट आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई सेल्फ. I think we should give credit to Zorawar. I think we should give credit to Zorawar. I think he's the kind of kid जो अपने आप credit ले भी लेगा. वो अच्छी बात है, but because we know, we have seen you're juggling between events, you're doing poetry shows, and you're writing your book, and I'm like, is there anything you can't do because this is too much you're doing? Yeah, you know what I can't do? I find it very hard to do nothing.
And I think there is a beauty in doing nothing. There is an Italian quote that says "La bien niente," the beauty of doing nothing. तो I think वो अगर मुझे कुछ सीखना है ज़िंदगी में तो वो सीखना है, because I think फुर्सत भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है. तो थोड़ा सा I think that is something I need to teach myself. हमें भी सिखाते हो ना फिर वो थोड़ा थोड़ा. Yes. आप खुद सीखते थोड़ा हो, हमें बहुत. सिखाते हो. Yeah. Now also you have introduced Poetry-Stan. Now Yeah. Poetry-Stan is not just a platform, it's a movement in itself. Yeah. So was there any gap that you identified, or there was something missing in the Indian poetry landscape or something? So I've been doing spoken word poetry for almost a decade now. You know, जब ये इंडस्ट्री थी भी नहीं तब से हमने शुरू किया हुआ है. Now it's a career. So people who have entered it now, हमने उनके लिए रास्ता ऑलरेडी पेव कर दिया है आज से 10 साल पहले से. And I think the gap that is there is that nobody is giving new people a platform. अगर आप अपने आप वायरल हो रहे हो तो वो अलग बात है. गुड फॉर यू, यू नो, आपका लक, आपका टैलेंट, दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो वायरल नहीं हुए हैं लेकिन वो हमसे भी अच्छा लिखते हैं. आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु राइट बेटर दैन मी, हु रिसाइट बेटर दैन मी, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. तो ये कोशिश है ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की हर इंडस्ट्री में, चाहे वो पोइट्री हो, वो म्यूज़िक हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो. तो इट्स वेरी गुड टू हैव क्रिएटिव पीपल एट द फोर फ्रंट. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और अपनी कविताएं सुनाते हैं. और कभी कभार रेयरली कोई ऐसी कविता होती है जो सुन के मुझे लगता है यार काश मैंने लिखी होती. और पोइट्री-स्तान में रिसेंटली एक लड़की ने एक ऐसी कविता सुनाई थी जो मुझे देखकर लगा था कि ओह आई विश आई हैड रिटन दिस, एंड शी वन द एपिसोड. सो या, Because I think one of the most खूबसूरत बात of being poet is कि you feel the other person's pain. Yeah. And then you also appreciate it, because फिर वो ऐसा नहीं होता ना कि नहीं अच्छी लिखी पर इसकी तारीफ नहीं कर सकते ज़्यादा. अरे नहीं, नॉट एट ऑल. Yeah, but हाँ वो इवन अपने फेलो पोइट्स की भी आपको तारीफ करना आना चाहिए, राइट? जब भी मेरे साथ का कोई बहुत अच्छा लिखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के. This is one So thing. yeah, that's really important. Because हमने देखा है वो जब पुराने ज़माने में मुशायरे ये सब होते थे, वो अपने से ज़्यादा दूसरे की तारीफ करते थे. Because वो अप्रिशिएट करते थे कि ये हम तो नहीं सोच पाएंगे. और हम लोगों ने ऐसे ही शुरुआत की थी. यू नो, व्हेन जब मैं कह रही हूँ जब इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम पे हम सब ओपन माइक्स करते थे. नोबडी वाज डूइंग दिस एज अ करियर. तो उस टाइम एक दूसरे की तारीफ हम ही लोग करते थे क्योंकि ऑडियंस में सिर्फ हम होते थे. बाकी दुनिया तो यूट्यूब पे देख रही थी. तो हम पोएट्स ही एक दूसरे पोएट्स को देखकर फीडबैक देते थे, तारीफ करते थे, एक दूसरे का काम शेयर करते थे. तो आई थिंक वो चीज़ हमेशा बनी रहनी चाहिए. And also now being poet is like कि आप चाहते हो कि even if you go down, if you pass away, there's words, your words that leave behind. Yeah, that is our legacy, right? कुछ समय पहले एक टीचर मेरा शो देखने आई थी और शो के बाद मैं लोगों से अक्सर मिला करती हूँ. तो जब वो मुझसे मिली उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया बालाजी इंटरनेशनल स्कूल का फ्रॉम बॉम्बे. और उसमें 11-12 साल की लड़की अपने एनुअल डे पे मेरी कविता सुना रही थी स्टेज पे. एंड दैट वाज अ वेरी फुल सर्कल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे याद आई वो 11-12 साल की प्रिया जो अपने एनुअल डे पे बड़े बड़े दिग्गज पोइट्स की पोएम माइक पे सुना रही होती थी. एंड टू मी अगर आप मुझसे पूछें मेरी ज़िंदगी की सबसे सक्सेसफुल मोमेंट क्या है, वो मोमेंट थी जब मैंने उस बच्ची को देखा. एंड आई थिंक उस समय उस वक्त मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ तो कर रहे हैं. क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोएम डाल दी, यूट्यूब पे पोएम डाल दी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है, इसका जो असर दिख रहा है, वो मुझे पहली बार यू नो आने वाली जनरेशन में दिखा. एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी. क्या वो उस वाली प्रिया को अच्छा लगा था जिसके घर पे गेस्ट आते थे और डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर पोएम सुनाती थी सबको? Yes, I could see myself in that girl, you know, and she was in grade 6. और फिर उन टीचर ने मुझे grade 3 के बच्चों का दिखाया videos, again my poems, grade 4 के बच्चों का दिखाया. I could not stop crying, and every time I still talk about it I get so emotional because I think that is the first time मुझे realize हुआ कि जो हम कर रहे हैं उसका असर हो रहा है. और अगर हमारी लिखी हुई कविताएं बच्चों को कविताओं से जोड़ रही है या भाषा से जोड़ रही है या कला से जोड़ रही है, स्टेज पर कविता सुनाना भी अपने आप में एक कला है, तो मुझे लगता है मैंने सचमुच में ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है. मैं अपने इंटरनेशनल शोज़ को इतनी बड़ी बात नहीं मानती, मैं ऑडिटोरियम शोज़ को इतनी बड़ी बात नहीं मानती, लेकिन मैं इस बात को बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि आने वाली पीढ़ी हमारी कविताएं सुना रही है. एंड आई थिंक टू मी that is the epitome of being successful. That's so beautiful. Yeah. Also, now Zorawar Peak, again, the little heart of yours, the little Yes. word of yours. Yes. ठीक है?
As a poet, what's that one word from English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Punjabi? Because you are a multilingual Yes, I am. person. Yeah, You are yeah. born into multicultural family. Yeah. ठीक है? And you give same cultural Values to your to child, Sarabai. yeah. Okay. Now, what is that one word you would want him to learn and keep it with him? One word that I want him to learn and keep it with him. बहुत प्यारा सवाल है. Humility, you know, groundedness. I think I really want him to be a humble soul. जितना भी उड़े ज़िंदगी में अपनी ज़मीन से जुड़ा बच्चा हमेशा रहना चाहिए, और यही चीज़ आई थिंक मुझे भी ज़िंदगी में हमेशा वापस लेकर आती है, you know, जुड़ाव. तो मैं चाहती हूँ कि उसकी जो जड़ें हों बहुत स्ट्रॉन्ग हो. वो वर्ड एग्जैक्ट कौन सा होगा शायद मैं कुछ समय में यू नो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दे पाऊंगी. बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ दैट वन वैल्यू, इट इज़ डेफिनेटली ह्यूमिलिटी. बिकॉज लदे हुए पेड़ भी झुके हुए होते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा लदा हुआ रहे. आई वॉन्ट हिम टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर ही चूजेस टू डू, बट आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू बी ग्राउंडेड. क्योंकि आप पंख भी अपने तभी फैला सकते हैं जब आपकी जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हो. Shukrguzar can be that word? हाँ, शुक्रगुजार, grateful, yeah, why not? With word being said, Shukrguzar, we have Priya Malik, and it was such a beautiful conversation with you. आप वो बातें कहते हो जो हम नहीं कह पाते. Thank So you. that's it. I know people, as much as you hate this and as much as I hate this to end my conversation with Priya, she has 100 things to do. Yeah, of course I know that. So as much as I'm sad I'm equally excited to see you super soon on the next episode of TMM. Until then, bye bye.